So I was saying that in this quadrilateral, triangle QPA, triangle RCS, trapezium QACR, and triangle PST. These are the four figures which will add up to find the area of the whole quadrilateral. Yes, miss. So first we are going to find area of triangle QPA. Area of triangle QPA or QAP is equal to half into product of sides forming right angle is equal to half into length QA into length AP is equal to half into 30 into 50 or 50 into 30. मिस बाद में जो भी हमें एरिया मिला सब फिगर्स का तो बाद में हमें उसको ऐड करना पड़ेगा ना? Yes. Yes. Correct. Correct. So solve this, see how much you are getting and box it up as area of triangle QAP. Miss 750 square centimeter. Yes, miss, 750 square centimeter. Correct. Yes, miss. Next. Yes, miss. Find area of triangle Q. Acha, area of quadrilateral trapezium QACR. Half into sum of parallel sides into height. So half into QA plus RC into AC will be the height. क्यों AC height है? You can see that this is perpendicular. Yes, miss. Yes, 90 can degree you है. see perpendicular signs? Yes. चलो, Yes, miss. solve करो. Find area. Length AC, AB plus BC is given. Correct? तो आपको वो ऐड करके 30 plus 30 करना पड़ेगा. मिस बट AC तो बेस है ना? वो क्वाड्रिलेटरल में वो 90 डिग्री है इसलिए हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना. तो फिर मिस QA हाइट नहीं हो सकता है? क्यू ए हाँ मिस. नहीं बेटा वो पैरेलल साइड्स है ना. ओके. नॉन पैरेलल साइड्स में जो परपेंडिकुलर हाँ हो. हाँ वो Miss area of trapezium Q1C equal to 2250 square meters. Yes, miss, 2250 square meter.
Yug, Yes, miss. have you done the homework? No, miss. Why? No, miss, I was not feeling well today. What happened to you? No, miss, मैं कल तीखा खाया था ना. Huh? So, miss, my stomach was paining. मिस हम दूसरे ट्रायंगल का वो करें एरिया फाइंड. हाँ मिस. Neil, why have you not done today? Neil is there. No. No miss. This नहीं मिस नहीं है. Same RCS you will find. Same like the first triangle. Product of sides forming right angle. Correct? Half into 60 into 25. बराबर? Any doubts? No, miss. मिस मुझे आपकी No, आवाज miss. नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही है? मिस आ रही है आपकी आवाज. आ रही है मिस एकदम मिस, क्लियर. मिस, मुझे भी आ रही है. किसी की भी आवाज नहीं आ रही है सृष्टि? निकल के वापस आ जाओ और क्या. ये सॉल्व हो गया? Yes miss. Yes, miss. यस मिस. Yes miss. कितना आया 750 आंसर? square meter. 750 square मिस Correct. meter. Yes. Now last. मिस मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. बस मुझे भी आपकी आवाज नहीं आ रही. अभी आएगी ना? क्यों नहीं आ रही है? मिस हाँ, आ मिस रही है. मिस, आ मुझे रही आ है. रही है. मिस आप पहले कुछ बोल ही मिस नहीं आप रहे कुछ बोल ही नहीं रहे थे तो. आ रही है थे. हाँ अभी? मिस. Okay. तो अभी you have to find area of triangle PST. Correct? For finding PST, you need base into height. So base is what? PS. Because perpendicular sign is here in this. BT is the height. तो BT दिया है. तो base कितना होगा? Base will be PA plus AB plus BC. Sorry, PA plus AB plus BC plus CS. 30 plus 30 plus 30. 150. 150. 150. Correct? Yes, So first miss. you will have to write PS is equal to PA plus AB plus BC plus CS. Start writing, everybody. Is equal to 30 plus 30 plus 30 plus 60. Equal to 150 meters. 150 meters, not square meters. We are just finding the length. We are not finding the area, correct? Now, area of triangle PST. Half into base into height. हाँ मिस.
Finished this much? Yes, miss. How many of Yes, you still miss. writing? Miss, can you Yes, मैं wait? लिख रहा हूँ. Huh? Can you? Wait. Wait. Rudra, you have also not done homework today. Yesterday also you had not done. Miss, Huh? can you hear me? Huh? Miss, I have done yesterday and today's homework I forgot to send. I have done. I can show you. I can send you now. What about Shrishti? मिस मैंने 2:01 पे सेंड किया था तो आफ्टर 2 में मेरा नाम आया. आएगा ही ना 2:01 मतलब आफ्टर 2 ही हुआ ना. हाँ मिस. Priyal? Priyal, are you there? Add for all 4 of them. Area of triangle, area of the plot QPTSR is equal to area of triangle QAP plus area of trapezium QACR plus triangle RCS plus triangle PTS. Add karo. Yes, Priyal. You have not done the homework. Miss 6,000 square meter. हाँ मिस. Correct. 6,970. Mariana, today you have also not done the homework. Priyal, why have you not done the homework? And Mariana, why have you not done the homework? मिस मरियाना ने किया था उसने लेट सबमिट किया. Late submit किया है. हाँ मिस. मिस उसने जिसने जिसने लेट सबमिट किया है ना उसका भी नाम नॉट डन में डाल दिया है. Have you finished? Everybody got the answer by adding? Yes. Yes, Yes, miss. Miss. Yes, miss. Tanay is there in the lecture? Tanay is there? So these are very, very easy sums. Okay, although they look big, but they are easy. Next. Second sum. I hope everybody finished this. Yes, miss. Anybody still writing? No, miss. No. No, miss. मिस सेकंड वाला सम हमको नहीं है इसको. ये तो बहुत ही इजी है. ये 3 हम लोग को triangles है. है. ट्रायंगल ए बी, ये क्या है? एफ है. ई, ए बी हम ई, लोग को सी है. डी ई और बी सी ई. बराबर. ये सम पे अटेंशन एवरीबॉडी, यू विल डू इट ऑन योर ओन. Triangle ABE is a right angle triangle. Yes, हाँ miss. मिस.
Yes, हाँ miss. मिस बराबर। हाँ मिस। हाँ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए दोनों आर्म्स चाहिए राइट एंगल के, मतलब ए बी और ए चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम करेक्ट, वेरी गुड जय। पाइथागोरस थ्योरम से आप ए ढूंढोगे, ए हाँ, मिस। ढूंढने के बाद ए बी का एरिया ढूंढोगे फर्स्ट, बराबर। सेकेंड, यस मिस। ट्राइंगल बी सी ई, ट्राइंगल बी सी ई स्केलियन ट्राइंगल है। Yes. BC 26, CE 28, BE 30. 30. So by Heron's Heron's formula, formula. correct. You will find the area of triangle BCE हाँ और मिस। based into height नीचे वाला. और last वाला base into height, correct. 28 into half into 28 into 16. यस। करेंगे अभी बच्चे? हाँ मिस। चलो, मिस तो हमें नहीं है तो अभी हम करें. हाँ कर लो ना, क्या है? एक्चुअली एक डिवीजन को मिस बोला है हमें कि तो नहीं है और दूसरे डिवीजन को बोल रहे हैं कि है. हाँ तो कर हाँ डालो मिस ना, हम लोग पता को तो है करा कैसे है करना है। थिंक इट इज एन एक्स्ट्रा सम, फर्स्ट सम है तो ये भी आ सकता है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट, है ना? चलो, ट्राइंगल ए बी, in triangle AB, measure angle A is equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, B square is equal to AB square plus AE square. B is how much? 30 square. So 30 square is equal to 24 square plus AE square. Therefore, AE square is equal to 30 square minus 24 square is equal to 900 minus 576 is equal to 324. इसमें स्किप कर दिया है स्टेप, आप लिखो therefore AE square is equal to 324. Therefore length AE is equal to root of 324 is equal to 18 meters. Therefore length AE is equal to square root of 324 is equal to 18 meters. Done? Yes, miss. Now you have area of triangle ABE is equal to half into product of sides forming right angle Yes, miss. is equal to half into AB into length AE is equal to half into 24 into 18. Solve करके आंसर ढूंढो. Miss 216. बेटा तू सॉल्व कर रहा है, सिर्फ देख के बोल रहा है. नो मिस किया ना. टू को मेरे को फोटो मिस भेज, 2 और को 9 से कट कर देंगे. फोटो भेज. यस. Yes, miss. 216. Yes, miss. 260. Everybody got this answer? Finished till here? Yes. Yes, I hope area सबको मिला. यस कोई लिख रहा है? Yes, Should I miss. wait? How many of you writing? Miss me. Okay. Unit is not given.
Then if in the some unit is not given, then you write square units. Unit मिस पर square. ऊपर दिया हुआ है इसमें ब्रैकेट ऊपर में दिया है all measures are in meters. मेजर्स क्या इन हुआ है? आर इन मीटर हाँ Miss, मिस लिखा सबसे होगा मेन bracket क्वेश्चन में। पे ब्रैकेट दिया में हुआ है लिखा all हुआ है। measures are in meters. मीटर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा. Miss, I finished writing. Thank you for waiting. Okay. Everybody finished? Yes. Go further. Yes. Okay. So then you will now find area of triangle BCE. Area of triangle BCE in triangle BCE, A is equal to 30 meters, B is equal to 28 meters, and C is equal to 26 meters. Therefore, what is the next step? Finding Yes. S. Very good. What is the formula of S? A plus B plus upon A plus B plus C upon upon 2. Correct. S का मतलब वापस मैं बोलती हूँ, S is the semi perimeter of the triangle. Semi perimeter मतलब perimeter का आधा, इसलिए हम A plus B plus C divide by 2 करते हैं. Yes, miss. 30 plus 28 plus 26 upon 2. 84. 84 divided 84 by 2, upon that 2. is 42. 42. 42. ये तो चला भी गया. किया सब लोगों ने? हाँ मिस. वापस करूँ, किसी का मिस हुआ है? नहीं मिस. मिस मेरा मिस हुआ. हाँ, मिस मेरा मिस हुआ. कौन बोला ये? मिस मैं. Christy. फटके तू क्या कर अपने आप. कॉपी कर रही है. सॉल्व हो जाना चाहिए अब तक. हो गया मिस. Find area. Come on, start finding area by herons. चलो herons formula डालो. Triangle area of triangle is equal to square root of S. S bracket S minus A, S minus B, S minus C. Come on. हाँ मिस. जाग जाओ सोए हुए भूतो. नहीं सो रहे मिस. आधे जन सो रहे, वेट कर रहे हैं. मिस कब लिखती है, हम कॉपी करते हैं. ओके. मैं रुकूंगी नहीं, हाँ, मैं जाने दूंगी फिर आगे. हाँ मिस जाने दो. आपको मिल जाना Yes, चाहिए अब miss. तक. मिस हो गया. 42 minus 30, 42 minus 28 and 42 minus 26. निखिल, तुम लेक्चर में हो या नहीं हो? मिस अखिल है वो. हाँ, सॉरी अखिल, आर यू देयर इन द लेक्चर? अखिल, Miss is not there. correct. So you get 42 as 2 into 3 into 7. Yes, miss. Correct? मिल 12, गया Yes, आंसर. miss. 4 into 3, which you can write as 2 into 2 into 3. 3. Yes, miss. 14, 2 into 7, 16, 4 into 4. Miss, when I did on my own, I got 14 into 3 into 4 into 2. Miss, instead of 4 into 4, I wrote 4 times 2. हाँ, चलेगा ना? हाँ मिस, और मैंने 42 को 7 into 6 लिया. बट Miss- तुम्हारे पास दूसरा कहाँ है? मिस 12 को ले लिया ना 6 into 2. हाँ, चलेगा चलेगा, तो 6 बाहर निकलेगा. हाँ मिस. ओके. मिस मेरे में मुझे आया 14 into 3 into 4 into 2. I took 14 as 14 into कॉमन. 3. वेरी गुड. हाँ, तो 14 रख सकते हो क्योंकि इधर 14 है ऑलरेडी. मुझे आंसर मिल गया. राइट आंसर मिलेगा पलक को. मेन वही है. 332. अगर बराबर से प्रॉपरली निकाला होगा तो 336 मिलना चाहिए. राइट आंसर है. पलक आपको हाँ आया? मिस 336 मिला.
Miss, I'm calculating. हाँ मिस 36 मिला. हाँ मिस मुझे भी मिस राइट आया. Yes, Miss, right आया. Done. Done, everyone? Yes, miss. Yes, Yes, miss. miss. Done. How many of you still writing? मिस आपने No अभी one. बोला कॉपी नहीं करने को. जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है उनको कॉपी नहीं करने को बोला, जिनको आता है उनको कॉपी नहीं करना है. ओके मिस. अगर आपको ये भी कॉपी कॉपी किसको करना है. करना है? हाँ, जैसे आपने बोला जिनको प्रॉब्लम है उसको कॉपी नहीं करना है, जिनको आता है उसको कॉपी नहीं करना है, तो कॉपी किसको करना है? मिस आपने जिनको उल्टा थोड़ा पूछा. प्रॉब्लम है उनको कॉपी करने को बोला है मैंने. हाँ, बट वो भी ट्राई इट, एंड इफ यू डोंट गेट इट देन कॉपी एंड चेक इट. यस मिस. थोड़े स्लो होते हैं बच्चे, सबकी एक जैसी स्पीड नहीं रहती है, तो बाय द टाइम आई शो इट उनका नहीं होता है कंप्लीट, तो दे विल ऑब्वियसली कॉपी. बट जो बैठे रहते हैं जैसे कि सृष्टि, वो तो गलत है ना. जिनको पता है कि सेमी पेरीमीटर कैसे ढूंढना है बट वेटिंग मीन्स हम डायरेक्टली कॉपी करेंगे, वो तो गलत ही हो गया ना कंप्लीटली. मिस, कल आपने जब होमवर्क दिया था ना, उसमें प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस के सम में क्वेश्चन में दूसरा डिजिट था और डायग्राम में दूसरा डिजिट था. हाँ मिस. तो कोई भी एक Question सॉल्व में- करने का था. हाँ मिस, मिस मैंने भी वही मैंने दोनों किया और फिर मास्टर की का आंसर चेक किया, जो राइट था वो क्वेश्चन बना लिया. हाँ मिस मैंने भी सेम किया. चलो ओके, चलो. ईडीसी में या डीसीई में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू सीई इंटू डीएफ. देखो सब कॉपी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बात नहीं करते, हम सॉल्व कर देते हैं मिस के पहले और फिर चेक करें. नहीं, ये बोल रही हूँ, ये एटीट्यूड गलत है. मिस टेक्स्ट बुक में ना एफडी नहीं दिया हुआ था. क्या नहीं दिया है? डीएफ DF. डीएफ नहीं दिया है. मिस 16 नहीं दिया है. सेंटीमीटर. फिगर में दिया रहेगा ना. नहीं मिस दिया है. उधर सीडी को 16 सेंटीमीटर बताया. मिस दोनों के बीच में. हाँ मिस, इसमें तो पूरे ट्राइंगल में 16 लिखा हुआ इसलिए है. जोसेफ ने छोड़ दिया. कंफ्यूजन. हाँ, दिखाई तो हम इधर अज्यूम कर लेते last हैं year FD है, वरना ये सम नहीं होगा सॉल्व, क्योंकि डी यू कैन नॉट फाइंड. पर मिस मिस फाइंड कर सकते हैं ना. अगर सीडी 16 लेते हैं तो डी नहीं मिल सकता है. मिस डीएफ हम फाइंड कर सकते हैं. डीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं? मिस यही फॉर्मूले से. कौन सा फॉर्मूला? ये वाला. 1 हाफ upon इंटू 2 बेस base इंटू into height. अरे तो 1/2 इंटू बेस तो 28 इंटू हाइट, और बाद में हाइट को ये साइड एरिया किधर है? हाइट भी नहीं है, एरिया भी नहीं है. हाँ मिस वो तो साइड डी है ना. मिस. डीसी हाँ, डीसी तो साइड डी है उधर. मिस मास्टर की में तो डीएफ के वहाँ 16 लिखा है. हाँ हाँ, मिस. तो वही बोल रही हूँ मैं, डीएफ ही 16 करना पड़ेगा तो ही सम सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा. ओके. So area of the plot is equal to, आप डायरेक्टली ऐड नहीं करना, ऐसे लिख के ऐड करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ थर्ड ट्राइंगल, ऐसे. 766. 7 760. 776. 7,760 बोल. हाँ? 776. हाँ मिस. मिस उसने बोला था 700 and 760, इसलिए मैंने बोला.
कि उसने गलत बोला। मैं छोटो मुंह से बिना ही- निकल गया। तूने फोटो नहीं भेजा मेरे को? मिस भेजा आपको, प्रश्न में भेजा। कितने टाइम के बाद भेजा? 9 में जैसे आया और उसके 2 मिनट बाद भेज दी। मिस ये तो हो गया हमारा। वापस करते हैं। नहीं मिस, बेटा ये क्या लिखा है? फॉर बी सी ई। नहीं मिस, तभी आपने बोला कि फोटो भेजना है, सीधे मैं अधूरा छोड़ के आपको फोटो भेजना था। ब्रैकेट बंद नहीं किया है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिखा है। हाँ यस मिस। एक्सक्यूज मी। मिस आप कल के होमवर्क के आंसर्स दोगे? मिस रंबस के भी बाकी है। हाँ मिस। हाँ मिस। यस मिस। हाँ कल के होमवर्क के आंसर्स भी ले लो और ये भी ले लो। मिस अभी दे रहे हो? हाँ हाँ मिस। चेक कर लो। मिस पहले रोम्बस के कल वाला। कल वाला पहले एरिया का। हाँ मिस। यस मिस, 2 सम्स था। हाँ मिस। PQRS एंड LMNP वही है ना? हाँ मिस। यस मिस। हाँ मिस। हाँ मिस। मिस क्या है आंसर उसका? ट्रायंगल पी। 412 एंड 552। हाँ मिस, दोनों राइट है। मिस दो आंसर यस कैसे? मिस राइट। अरे हाँ? फर्स्ट का हाँ 412 मिस 52। मिस जय पूछ रहा है एक PQRS सम वाला के जो है ना वो 412 है हाँ मिस राइट है। और LMNP वाला 552। मिस मेरे को सेकंड वाले में 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। फर्स्ट ट्रायंगल था ट्रायंगल LMN हाँ बराबर। मिस। हाफ मिस। इंटू 18 इंटू 24 तो 9 इंटू 24 वो कितना आया? Miss, LMN I found that hypotenuse by the Pythagoras theorem. why? Both the sides are given 18 and 24. Why? हाँ ln find करना है but it is for Heron's formula for triangle LNP. For triangle LMN आपने क्या लिया? So I did from Pythagoras theorem. I think that's why I got the wrong अरे answer. पाइथागोरस थ्योरम से एरिया कैसे फाइंड करते हो? मिस पाइथागोरस थ्योरम है पाइथागोरस ना थ्योरम वो से साइड पाइथागोरस में ने बेटा। हेरेंस फॉर्मूला ln से find लिए थे। किया। हाँ हाँ फिर मिस। आगे वो करेक्ट है फिर आगे। Miss, then I found the area of LMN. हाँ how what did you write? Half into Miss, उसमें गलती हो गई. I did from the Heron's formula. okay then also you will get the same answer. How much did you get? Miss, I got 216. ए कौन है ये माइक ऑन? या देवांशी के उधर माइक में से ही आवाज आ रही हाँ मिस उसके आवाज उससे है? आ ओके गया। 216 you got for LMN. Everybody got 216. यस मिस। So it is correct, but Devanshi, that you have to do it by right angle triangle formula. Okay, you will get correct answer, but your teacher will might cancel half mark for not using the right formula Miss, because that is I easier. got 580. तो फिर LNP कितना आया एरिया? उसमें क्या किया आपने?
Miss, I forgot to find S. एस कहाँ पे है? अच्छा Miss, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर भूल गई, तो फाउंड उसके बिना फाइंड कैसे किया? मिस आई डोंट नो हाउ बट ओके Miss, I got first sum answer. वापस करो और फिर मेरे को 292. बता रहा है या नहीं। ओके हाँ, miss. ऊपर लिख दो 552 so you remember that is the answer. Miss, Yes, I got miss. first sum answer as 292. 292 बट एक्चुअल में क्या है 2 412 412 तो फर्स्ट ट्रायंगल PSR half into base into height Yes, miss. half into 26 into 16 Yes, miss. 13 into 16 कितना आया? 208. करेक्ट बराबर सबको 208 आया। हाँ मिस Yes. सेकंड बाय हेरॉन्स फॉर्मूला कितना आया? मिस मुझे 84 आया। 8 204 84 आया। 84 Miss, मुझे 204 आंसर है। मिस मुझे उसका सेमी पेरीमीटर 34 आया। करेक्ट है 34 करेक्ट है। फिर 34 माइनस क्या किया अंदर? 34 minus 17, हाँ 34 minus 25, 34 minus 26, हाँ तो 34 माइनस 17 कितना आया? 17, 34 माइनस 25 9, और 26 8. हाँ मिस राइट है। मिस Right. मैंने उसको डिवाइड ऐसे किया है 17 into 2 into एक 7 मिनट 17 into 2 कैसे? मिस Miss, 34 74 हाँ 17 into 2 ओके फिर into 17 मैंने उसे हाँ डायरेक्ट नीचे हाँ लिया डायरेक्ट आएगा बराबर। into 2 into 2 into 2 वो 8 क्या का है? किया है 8 का 8 ओके का करेक्ट 3 बार। into 3 into 3 हाँ 9 मिस का ये भी राइट है। Miss, right है। हाँ अभी बाहर Correct निकाल है। 17 एक बाहर निकलेगा। मिस मैंने 7 बाहर लिया है उसलिए ठीक है मिस कैन यू रिपीट आंसर 2 मिस 412 स्क्वायर 412 सॉरी मिस जिसकी मिस्टेक रहती है बहुत छोटी छोटी मिस्टेक रहती हाँ मिस। मिस वो रोमबस वाले सम्स के रोम्बस वाले दे रही हूँ। जय आपने क्या बोला? मिस सब में छोटी छोटी मिस्टेक होती है। है। हाँ हाँ मिस तो बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करोगे तो छोटी छोटी भी मिस्टेक नहीं होगी। नहीं होगी। रोम्बस में मिस वो एक टेबल दिया था आपने। करेक्ट वन डायगोनल इज 12.8 वो वाला हाँ मिस एंड अदर इज 5 करेक्ट वो miss. वाला सम ढूंढ लो। यस मिस हाँ मिस मिल गया। मिल गया। फर्स्ट आंसर इज 32 32 square meter सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर। ये सेंटीमीटर है कि मीटर है? सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर CM. एरिया है ना 32 करेक्ट। सेकंड 1.5 यस मिस डायगोनल का लेंथ है सेंटीमीटर है वो। हाँ हाँ मिस। मिस आया वो करने को? हाँ मिस हाँ मिस। हाँ मिस। मिस मैंने रॉन्ग किया वो मुझे 3.61 आया। मिस मुझे 5.5 आ रहा है। एरिया फाइंड कर दिया लगता है आप लोगों ने। मिस तो वो लेंथ कैसे ढूंढे अब? क्रॉस मल्टीप्लाई मिस 3.8 into 2.5 2.85 अपॉन 3.8 into 2 2.85 into 2 upon 3.8 yes miss
तो नीचे इंटू 100 मेरा आएगा और 3.8 10 आएगा, पॉइंट निकाल मिस तो नीचे 3.8 into 100 आएगा ना? हाँ, और ऊपर 2.85 इंटू 10 इंटू 2 हाँ मिस। 10. बराबर। हाँ मिस। Yes. जिन्होंने किया है कर लिया है उनको बोर हो रहा है। मिस उसका फाइनल आंसर क्या है? बोलो, वो भी मैं बोलूं तो इतना तो सॉल्व करो तुम लोग, शाणे लोग। इतना बोल बोल के थक जाती हूँ कि सॉल्व करो, आंसर पूछ रहे हो मेरे से, तो मैं क्यों रुकी हूँ इधर सिर्फ आपको बोलने के लिए, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो और फिर आंसर ले लो, ये लो गिफ्ट। हाँ, इसलिए मैं इतना स्लो स्लो करवा रही हूँ ना, कि सब आंसर दे दूं मस्त में, रेडीमेड, कट कॉपी पेस्ट, कट भी नहीं, कॉपी पेस्ट। मिस कट करना पड़ेगा ना वो नंबर्स को। मिस 1.5 है। वो करोगे तो ना, सीधा पेस्ट और कॉपी करके पेस्ट करना है तुमको, कट करना ही नहीं है। 1.5 है करेक्ट। चलो थर्ड सम 24 सेंटीमीटर्स। अभी ये जिसको वो वाला नहीं आया होगा, ये भी नहीं आया होगा। मिस कितना 24 बोला? सेंटीमीटर 24 राइट? किसी को नहीं मिला? मिस मिला ना हम लोग को? बोला हाँ राइट। 24. हाँ 24 राइट। मिस मेरे को वो वाला नहीं आया, ये वाला है। वो पॉइंट वाला था ना, तूने ऐसे ही छोड़ दिया। नहीं मिस उसमें मैंने 38 लिखा ही नहीं था। जिगर आपको 100 मिस्टेक पता चली? 5.5 मिला था ना, मिस्टेक पता चली या नहीं? मिस 1.5 मिला था। तू जिगर है। तो आंसर था। हे भगवान, सॉरी मिस, मुझे लगा आपने आंसर बोला। दिया आपने सॉल्व किया या नहीं? हाँ मिस किया है। अच्छा दिया बोला, सॉरी। हाँ मिस किया है। अच्छा, तो हाँ ना, राइट आया रॉन्ग गया कुछ नहीं आ रहा है आपका? मिस राइट गया सब कुछ। सब कुछ? अभी अभी तो तक सब तो। आंसर भी नहीं बोला मैंने। मिस अभी तक। अच्छा, नेक्स्ट सम आगे है ना? और हाँ मिस, और हाँ, 5 सम है। एरिया ढूंढना है नेक्स्ट सम में। यस हाँ मिस, मिस एरिया ऑफ द नंबर 1296 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। राइट है। नेक्स्ट इज 21 सेंटीमीटर। ये भी राइट है। मिस ये वापस आंसर क्या जाएगा बोला आपने वो इसमें। पहले का? जय क्या बोला? पहले का आंसर क्या बोला? 1296 एरिया का। और उसके बाद 21. 21 सेंटीमीटर। 21। और उसके बाद 504 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। यस हाँ मिस, मिस। राइट है। और है हाँ मिस, और 2 है ना? और 2 18 सेंटीमीटर हाँ मिस, ये भी राइट। और 26 सेंटीमीटर। हाँ मिस, ये भी राइट है। हाँ मिस इधर आए। Correct. अभी सब सम्स एरिया के चेक हो गए? हाँ मिस, सब कुछ। Yes, miss. मिस अभी क्या करवाओगे? अभी पहले आज के लिए होमवर्क ले लो। हाँ मिस बोलो। प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस लास्ट एक्सरसाइज का करोगे? लास्ट मतलब मिस आज जो किया वो ना 15.5। हाँ मिस 15.5 का ना? उसका ही प्रॉब्लम्स पर प्रैक्टिस करना है ना? हाँ, मिस वो सेकंड लास्ट है। और एक सम एक्स्ट्रा मैंने मिस दिया वो करना। मैम ये 7th सम नहीं दिया था ना क्या मिस? ये सम दिया? नहीं मिस, नहीं दिया था। नो मिस नहीं दिया। मिस ये तो 15.4 जैसा है। हाँ 4 जैसा है। ओके, प्लॉट वाले जो मास्टर की में वो इनफ है आप लोगों के लिए। मिस वो प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस के दोनों सम करने हैं।
मतलब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। यस। और एक चीज करनी है आपको, मिस आज कौन सा ऐसे लिखना है? हाँ मिस, असाइनमेंट में से भी करना है। मिस आज इंग्लिश में दो ना। हाँ मिस, ऐसे इंग्लिश दो ना आज। मिस इंग्लिश का तो दिया था ना सेव अर्थ। तो मिस हिंदी भी हो गया, मराठी भी हो गया, अभी वापस इंग्लिश। मिस हिंदी के तो 2 हो गए। मिस अभी फ्रेंच में दो। क्या? फ्रेंच। गुजराती DID। हाँ मिस DID गुजराती भी करना है। चलेगा। DID करना है। Yes, Miss. Yes. असाइनमेंट सम्स कब करना है मिस असाइनमेंट का? आज एक अलग बात करते हैं। आप लोग इंग्लिश टेक्स्ट बुक लेके बैठो, हाँ हम मिस, लोग लिया इंग्लिश हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते मिस कौन ऐसे सा? करवाओ ना हैं। हाँ आपने। मिस ऐसे का 2 टॉपिक सब तक नहीं हुआ हम लोग का। कौन मेरा सा? प्रिया नेता और जाडांचे आत्मवृत्त दोनों लिख लिया, आपने डिस्कस नहीं हाँ करवाया। मिस। हाँ मिस। मिस आपने साइंस का चैप्टर भी बोला था कि आज और करवाओगे। भी नहीं करना। मिस और मेरा प्रिय त्योहार भी हाँ नहीं मिस। हाँ मिस, होली। हाँ बाकी। हाँ मिस। मिस और DID का करेक्शन भी बाकी है। मिस वॉइस का भी करेक्शन बाकी है। ये कुछ नहीं करना है। कॉम्प्रिहेंशन करना है। नहीं तो मिस तब आज बाकी। जल्दी छोड़ रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मिस एरिया करवा रहे हो सर्कल का? वो तो हो गए। नहीं मिस। एंड Oh no. मिस वो इसका हम वो खेतों से आई तकदीर है वो। इसमें मिस लकड़हारा मेरा और जन्म बनकिया। सिद्ध अधिकार करो। हाँ मिस। हाँ मिस लकड़हारा हो गया। 4th नहीं है हमें। 5th और वो हो गया। है मिस वो खेती से आई तक वो तब्दीली हो गया या बाकी है? मिस बाकी बाकी है। मिस हाफ हिंदी बहुत को भी सिंपल बैठो। है, बहुत सिंपल है। मिस हाफ हिंदी को बैठना है। हाँ हाँ, क्योंकि मैं इसके ये 2 मिनट का चैप्टर है, इसके बाद मैं आप लोगों से ऐसे डिस्कस करूंगी। सो वेट। मिस आवाज थैंक नहीं यू आ रही है। मिस। हाँ आवाज नहीं आ रही है आपकी नहीं ये विकी। तो उसको बोल, वो नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगी। तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक निकाल लो। मिस आवाज आ रही। अरे ये आपके बुक में लिखा है, इसको आवाज करके क्या करना है, टेक्स्ट बुक में देखो। हाँ मिस आप बोलो ना। एक्सक्यूज मी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट। वो एक चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक। ओके। नेहरू जी ने आधुनिक मतलब मॉडर्न भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। He has played an important role in the development of modern India. आपने विज्ञान और प्रौद्योगिक के विकास को प्रोत्साहित किया है। प्रौद्योगिक, इंडस्ट्रीज। मिस वक्ता का मतलब? स्पीकर। ओरेटर। एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, ये सब उनकी राइटिंग्स है। नाउ इस चैप्टर से रिलेटेड प्रस्तुत पत्र है। इट इज अ लेटर रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू टू इंदिरा नेहरू। बराबर। इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए माननीय
सॉरी, मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब में के मापदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। मिस मानवीय सभ्यता मतलब? मानवीय सभ्यता मतलब ह्यूमन बिहेवियर। और मिस क्रमिक? सिस्टमैटिक, क्रमिक मतलब सीरीज में। जैसे जो भी विकास होता है वो एक सिस्टम से होता है, पहले ये फिर ये वैसे। मिस मानदंड मतलब? मापदंड इज कंपैरिजन, मान नहीं, वो माप है। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पीछे खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। काम बांटना मतलब जो भी डेली रूटीन होता है। अभी कैसे if both the parents are working, you can see कि the work of the house is divided, है ना? Yes or no? तो पहले जब सिर्फ शिकार करके गुजर करना होता था तो क्या करते थे? मीट लाते थे, पकाते थे, खाते थे, खत्म बात। नो झंझट, नो गैस, नो यूटेंसिल्स, नो स्टव, नथिंग रिक्वायर्ड। बराबर? मीट पकाने के लिए चाहिए ना स्टोव। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू होगा। ही इज थिंकिंग कि ये कैसे हुआ होगा पूरा काम। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। मिस पहले तब्दीलियां का मतलब क्या है? चेंजेस। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात हुई कि काम कई हिस्सों में बंटने लगे। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। हल पता है ना? हाँ मिस है। ज्यों ज्यों मतलब जैसे जैसे दिन गुजरते गए, टाइम बीतता गया, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे। पेशे मतलब ऑक्यूपेशंस, और उनमें पक्के हो गए। पक्के हो जाना मतलब निपुण हो जाना। फिशिंग, यस, व्यवसाय। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने, है ना? क्योंकि जहां पे एग्रीकल्चर लैंड दिखती थी, वाटर सप्लाई होता था, वहीं पे वो फार्मर अपना घर बनाने लगा और रहने लगा। तो छोटी छोटी कम्युनिटीज बनने लगी। सेटलमेंट्स। ओके, मिस कस्बे मतलब? वो एक कम्युनिटी जो 4-5 घर मिलके एक साथ रहने, मतलब 4-5 घर एक एरिया में, ऐसे। तो इट्स नॉट अ गांव ऑल्सो, इट्स अ कस्बा। सेटलमेंट्स। हाँ, सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स, करेक्ट। लोग इनमें आबाद होने लगे। आबाद होना मतलब आगे बढ़ना। आगे बढ़ने लगे, डेवलप होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। नाउ दे started settling at one place and doing one thing instead of moving from place to place in a forest. शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था, क्योंकि they also needed food.
चारा बोलते हैं ना, चारा चारा चाहिए उनको। इन जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की जरूरत थी। नाउ दे स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर, बट उनके जो पाले हुए एनिमल्स है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, उनको खाने के लिए हर रोज ले जाना पड़ता है। तो हर रोज अगर वो लेके जाएंगे तो एग्रीकल्चर फार्मिंग कौन करेगा? इसलिए उन्होंने किसको रखा? चरागाहों, मतलब जो चराने वाले लोग होते, एक एक आदमी को अपॉइंट किया और उसको बोला कि सब एनिमल्स को लेके जा, जहां पे भी ग्रास है वहां पे खिला के रिटर्न है लेके आ। शेपर्ड। बराबर। अब उसका भी एक नया ऑक्यूपेशन हो गया, है ना? करेक्ट। ऑक्यूपेशन भी हो गया और ऐसी ग्रासलैंड्स भी बनने लगे जहां पे सिर्फ गाय बैल बकरियां चरने के लिए जाती थी। एक जगह कुछ दिन तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति की दूसरी जगह जाना पड़ता था। पहले जब वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे तो क्या होता था कि एक पैस्चर लैंड मिला। पैस्चर लैंड मतलब मैंने आपको समझाया था, छोटे छोटे घास जहां उगते। तो बहुत टाइम तक अगर उसी जगह पे रोज 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 घास खा रहे तो घास उगेगा नहीं, फिर खत्म हो जाएगा। अगर वो एरिया में घास खत्म हो गया तो उनको ऐसी दूसरी जगह ढूंढनी पड़ती और पूरा का पूरा सेटलमेंट घूमता सब एनिमल्स को लेकर और किधर और रहने लगता जहां पे ऐसी पैस्चर लैंड दिखती उनको। बराबर। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनके जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। करेक्ट। अब अगर एग्रीकल्चर कर रहे हो तो तुम ऐसे प्लेस टू प्लेस नहीं घूम सकते। जमीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन जोत बोकर मतलब उसमें सीड्स डालकर। बराबर। वो छोड़ के एनिमल्स को फार्मिंग के लिए नहीं लेके जा सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। समझा? मिस तो अभी ये सोच रहे हैं कि बता रहे हैं? बता रहे। तब तब ये भी नेहरू जी ने उनकी बेटी को तब लिखा था 1900 में। ये सोच नहीं रहे, ये लेटर में लिखा हुआ है उनको कि कैसे कैसे चेंजेस आए लाइफ। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगी। Now we didn't had to run from here to there for killing the meat, for getting meat, and there was less danger of life, क्योंकि फॉरेस्ट में तो कितने खतरनाक ये भी रहते थे जानवर और ये सब। अब सेटलमेंट्स में इतने लोग के साथ रहने लगे तो दे कुड फाइट एनी लायन और टाइगर अटैक ऑल्सो। बराबर। दूसरी बात ये हो गया ना, खेती से जमीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज्यादा आसान था। इसके सिवा जमीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। इसे वे सुरक्षित रखते थे, स्टोर करके ग्रेन्स रखते थे तो पूरा साल उनका आराम से निकल जाता था। है ना? एक और मजे की बात सुनो। जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा ना कर सकता था। है ना? मीट फ्लैश खाते हो तो उसको जमा नहीं कर सकते। यस। तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपए व दूसरी चीजें रख सकता। उसे तो अपने पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था।
खेती से उसे एक फसल की जरूरत से ज्यादा मिल जाता था, तो वो क्या करता था, पहले बार्टर सिस्टम हुआ, अपनी दूसरी चीजें ले लेता था ग्रेन्स के बदले, धीरे धीरे कॉइन्स आ गए, पैसे आ गए, तो ग्रेन्स बेचकर वो पैसे बैंक में जमा करता था, तो बैंकिंग शुरू हो गया, अलग ऑक्यूपेशन। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था। बराबर। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर मतलब ध्यान करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यहाँ अतिरिक्त रुपया है, मतलब एक्स्ट्रा मनी है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बार ही खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक बार की का मतलब एकदम से, तुरंत, अभी का अभी खर्च करने की जरूरत नहीं है। वही लोग मालदार है जिनके पास बहुत से अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं है वे गरीब है। मिस मालदार मतलब पैसे वाले ना? हाँ, जिनके पास माल है वो मालदार है। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यहाँ अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। कहाँ से आता है? इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है, बल्कि आजकल तो जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उनके पास भी बहुत सारे रुपए हो जाते हैं, है ना? हाँ मिस, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी। उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है ना? एक अकाउंटेंट जो बैठ के सिर्फ लिखता है उसके पास कम बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन वो मजदूर जो इतना ज्यादा बोझ उठाकर एक जगह से दूसरी जगह सब भर रहा है उसके पास कम पैसे। कम पैसा है। इसलिए हम आपको बोलते हैं पढ़ाई करो। समझ में आया कि पढ़ाई करोगे कितना बुरा इंतजाम है? इंतजाम बुरा नहीं है। व्हेन यू आर एजुकेटेड यू कैन गो डू थिंग्स विच आर बेटर देन हार्ड वर्क। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई कर ली, मैं सीए बन गया या बन गई तो मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा, मैं अकाउंटेंट हूँ तो मैं बैठ के मेरा काम हो जाएगा, मेरे को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। नहीं, उस चीज में भी मेहनत लगती है। लेकिन जो दिन भर एक अकाउंटेंट बन के कमाओगे, वही काम अगर एक नॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल सेलर या फ्रूट सेलर या हाउस हेल्प, ऐसा कुछ भी काम करके पूरा दिन मेहनत करके कमाओगे, पैसा कितना जमा करोगे? होगा कि नहीं ये डिफरेंस? यस मिस। होगा कि नहीं डिफरेंस? So that is why we keep on telling you कि education is very very important right now. समझ में आया? जॉब तो सबको मिलेगी, बट कौन सी जॉब से कितना मिलेगा that you have to see for yourself. तुमको देखना है, तुमको सोचना है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में आजकल इतनी गरीब आदमी है।
सॉरी किड्स। इसके पहले आया, अभी तुम यह शायद समझ ना सको इसलिए तुम इसमें सिर मत खपाओ क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है, पर्याप्त है मतलब इनफ है, कि खेती से आदमी को उससे ज्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था, यह जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में न रुपए थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊंट और या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। ये बहुत पहले का टाइम है। हाँ? तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। फिनिश। नहीं, इजी चैप्टर है, हो गया हाँ, ना खत्म। किसी ने टेक्स्ट बुक में साथ साथ में पढ़ा है? मिस पढ़ा नहीं है, देखा है। हाँ मिस, वही पढ़ा अभी मैंने। अभी साथ साथ हाँ मिस। हाँ, तो कुछ मिस नहीं हुआ है ना? नहीं नहीं मिस, नहीं। नो मिस, कुछ नहीं हुआ मिस। ठीक है। एक्सक्यूज मी मिस। हाँ, मिस मेरा डिवाइस चार्ज नहीं है, दूसरे डिवाइस से लॉगिन कर रहा हूँ। क्या डिवाइस? चार्ज नहीं है, दूसरे डिवाइस से लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है। मिस इसमें साइड में